السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ازبکستان کے ساتھ تجارت اور دفاعی شعبوں میں پیش رفت اور روابط کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ آسان ویزا طریقہ کار اور بہتر بینکنگ چینل سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے تجارتی حجم کا $1 ارب کا ہدف حاصل ہو جائے گا۔ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کی اقتصادی تعاون کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم کی ازبک نائب وزیر اعظم ڈاکٹر جمشید خیوف سے گفتگو۔ سمندر پار پاکستانیوں کی ملک میں سرمایہ کاری اور جائیدادوں کی حفاظت حکومتی ذمہ داری، اس بارے میں کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی معیشت میں کلیدی کردار ہے۔ ترسیلات زر کی قانونی اور محفوظ ذریعے سے منتقلی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی رقوم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل کریں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 142 پوائنٹس کا اضافہ، 56,665 پر بند، 19 ارب 53 کروڑ سے زیادہ مالیت کے 52 کروڑ 63 لاکھ شیئرز کا کاروبار۔ معاشی استحکام اور برآمدات میں اضافے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سہولت کونسل کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور رکاوٹیں دور کرنا ہے۔ پاکستان ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے، بزنس کمیونٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں مراد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ کاری کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ اقتصادی تعلقات، علاقائی تعاون اور روابط کی مضبوطی کے لیے پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کا اجلاس۔ تجارتی رکاوٹیں دور کرنے، کسٹم طریقہ کار آسان بنانے اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ۔ سہ فریقی تعاون سے اقتصادی ترقی تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ استعداد اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تینوں ملکوں کی نئی منڈیوں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، جنوبی علاقوں میں اسرائیل کی بمباری میں اضافہ، خان یونس اور جبالیہ مہاجر کیمپ پر شدید فضائی حملے، بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ، صہیونی فوج کی صفاقیت، الشفا ہسپتال کمپلیکس میں بڑی تعداد میں لاشیں، کوئی دفنانے والا نہیں، سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے مزید 40 مریض لقمہ اجل بن گئے، اسرائیلی فوج کا ہسپتال خالی کرنے کا الٹیمیٹم، مریضوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ڈاکٹرز کا انکار۔ غزہ میں بدترین انسانی بحران، بجلی، ایندھن، ادویات اور آکسیجن کی عدم دستیابی کے باعث زیادہ تر اسپتال بند۔ صہیونی فورسز کی شدید بمباری سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ ایندھن کی شدید قلت کے باعث غزہ کے تمام اسپتال 48 گھنٹے میں بند ہونے کا خدشہ۔ ہیومن رائٹس واچ کا اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کے جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات کا مطالبہ۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی گہما گہمی، قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے کوئٹہ میں ڈیرے، مختلف سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں، سابق وزیر اعلیٰ میر جام کمال سمیت کئی شخصیات کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت پر چلیں گے، تعاون کے رشتے کو مزید مضبوط بنائیں گے، محمد نواز شریف کی گفتگو۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں، ہمارے لیے عوام ہی کافی ہیں، ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، عام انتخابات میں کراچی سے خیبر پختونخوا تک کامیابی حاصل کریں گے، سابق صدر آصف علی زرداری۔
सियासत किसी के बलबूते पर नहीं, अपने सहारे पर होती है। हमें यकीन है कि अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। पीडीएम हुकूमत का साथ देना वक्त की जरूरत था। सियासी मफादात सामने रखते तो फैसला और होता। बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मिठी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की बिना पर लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, शहरियों की मजीद जायदादें जब्त, दर्जनों मुलाजमीन बरतरफ। इकदाम हिंदुत्व हुकूमत की साजिश है। मकामी मुलाजमीन की जगह बाहर के लोगों को भर्ती किया जाता है। हुर्रियत क़यादत की ओछे हथकंडों की शदीद मसम्मत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वीज़े का आसान तरीक़ाकार और बेहतर बैंकिंग चैनल्स बाहमी तिजारत के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगे। तवक्को है कि दोनों ममालिक की तिजारत बरादरी तिजारती हजम का $1 अरब का हदफ मुख्तसर करने में हासिल कर लेगी। इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अवामी रवाबित के फ़रोग़ से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने ताशकंद में 16वीं ECO सरबराह इजलास के मौके पर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए तिजारत, दिफा और मुवासलाती रवाबित के शोबों में ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान वज़राए तिजारत इजलास के इनेकाद को सराहते हुए इसके नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि सहफ़रीकी तरीक़ाकार तीनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का बायस बनेगा। सहफ़रीकी इजलास में कस्टम, लॉजिस्टिक्स, तिजारत के फ़रोग़, टैरिफ और TIR के तरीक़ाकार पर बातचीत के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया गया है। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म ने बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स के शोबों समेत पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी के साथ नतीजा खेज मुलाकातों के बारे में बताया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। इनकी सरमायाकारी और जायदादों की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में किसी कोताही की गुंजाइश नहीं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में नौमान मुस्तफ़ा की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं और मुल्की मईशत में उनका कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट रकूम की मुंतकिली का महफूज ज़रिया है जिसके इस्तेमाल से माशी बेहतरी में किरदार अदा किया जा सकता है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र की कानूनी और महफूज जरिए से मुंतकिली मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद और सहूलत फराहम करेगी। और नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन 100 इंडेक्स 142 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 56,665 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। IMF के साथ बातचीत का मुस्बत अंदाज में जारी रहने के अलावा IMF की टीम की जानिब से टैक्स नेटवर्क को सराहने से स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का एतमाद तेज़ी से बढ़ रहा है और आज 100 इंडेक्स ने 56,665 की सतह को बरकरार रखा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेज़ी मुल्क की मईशत का दुरुस्त सिमत में गामजन होने की अलामत है। तो मैं समझता हूँ कि ये आजकल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर जा रहा है, डॉलर भी अच्छा कंट्रोल में है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, SIFC बहुत अच्छा जा रहा है, MSI के दूसरे जो नंबर्स ऐड होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के उसके अंदर, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो साइज़ है ना वो और बढ़ जाएगी। हमारी जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो नए नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो IMF से जो गवर्नमेंट की नेगोशिएशन जा रही है वो भी बहुत अच्छी जा रही है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। IMF मैं समझता हूँ कि बहुत सेटिस्फाई है हमारी टीम से। स्टॉक मार्केट में 52 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 19 अरब 53 करोड़ 96 लाख रुपए से ज़्यादा थी। स्टॉक एक्सचेंज में 182 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 160 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 21 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम और बरामदात में इजाफे के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम
अमल में लाया गया है। इस्लामाबाद में जोग्राफियाई शोबे और मुख्तलिफ कारोबारी शोबों से वाबस्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई मार्केट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत की जानिब से दी गई मराद से फ़ायदा उठाते हुए खुसूसी इक्तसादी और टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवानों और ख़वातीन को जदीद IT महारतों से आरास्ता करने के लिए डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत 35 लाख अफराद को ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑनलाइन तालीम का हजम बढ़ाने के साथ मयारी और हुनरमंद ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इक्तिसादी ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और रवाबित को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का सह फ़रीकी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज, अफगान वज़ीर सनत नूरुद्दीन अजीज़ी और उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर जमशेद खाशिफ ने इस इजलास में मुश्तरका सदारत की। शुरका ने तीनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गौर किया। तिजारती रुकावटें दूर करने, कस्टम्स तरीक़ाकार को आसान बनाने, सरहद पार तिजारत को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। शुरका ने कहा कि रवाबित के फ़रोग़ से मुश्तरका मनसूबों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की राहें खुलेंगी। तीनों मुल्कों ने इलाकाई राब्ते की अहमियत को तस्लीम करते हुए सामान की नक़ल हमल आसान बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि सह फ़रीकी ताउन से इक़्तिसादी तरक्की तेज़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपनी इस्तेदाद और वसाइल को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की नई मंडियों तक रसाई हो सकती है और मईशतों को फ़रोग़ मिल सकता है। गौहर एजाज ने कहा कि बाहमी मुआशी इन्हिसार और ताउन को फ़रोग़ देकर हम खित्ते में पायदार तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रख सकते हैं। सह फ़रीकी इजलास करीबी इक़्तिसादी ताउन की जानिब एक अहम कदम है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के साथ बाहमी मुफाद में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ इज्तमाई कार्रवाई से इलाकाई तिजारत और राबतों की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाया जा सकता है। नाज़रीन, गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानियत का कत्लेआम जारी है। गज़ा में कोई भी इलाका महफूज नहीं रहा क्योंकि इसराइल ने जनूब में भी अपने फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं। सेहोनी फोर्सेस की जानिब से गज़ा में हस्पतालों, पनाह गुज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। जालिम फ़ौज के तैयारों ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी की है, जिसके नतीजे में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के तलकरम कैंप में ड्रोन हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली बर्बरियत में शहदा की मजमूई तादाद 11,240 से तजावज़ कर चुकी है, जिसमें 4,630 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत एंड्रयू मिचेल ने कहा है कि गज़ा में तवील इंसानी तवक्कुफ़ की ज़रूरत है ताकि महसूर इलाके में फ़लस्तीनियों की इमदाद पहुँचाई जा सके। हाउस ऑफ कॉमन्स में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि मामले को हल किया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि गजा के अस्पतालों पर इसराइल के हमलों के जंगी जराइम के तौर पर तहकीकात की जानी चाहिए। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी का कहना है कि अगर कल तक गजा में ईंधन की फराहमी मुमकिन न बनाई गई तो तमाम काम ठप हो जाएंगे। दूसरी जानिब गजा में बदतरीन इंसानी बहरान बरकरार है। 5 नवंबर से अब तक 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी कसम पुरसी की हालत में शुमाली गजा से जनूब की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। अल-शिफा और अल-कुद्स समेत गजा के बेशतर अस्पताल बिजली, ईंधन, अद्वियात और ऑक्सीजन की अदब दस्तयाबी के बायस बंद हो चुके हैं। सेहोनी फोर्सेज की जानिब से अस्पतालों और अतराफ में शदीद बमबारी से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने खदशा ज़ाहिर किया है कि गजा के तमाम अस्पताल 48 घंटे में बंद हो जाएंगे। आलमी इदारा सेहत ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। अस्पताल के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में लाशें मौजूद हैं। अल-शिफा अस्पताल के मैनेजर डॉक्टर मोहम्मद अबू सरीमा ने 32 मरीजों के जाम बहक होने की तस्दीक की है। असीरान के उमूर की कमीशन और फ़लस्तीनी कैदियों की सोसाइटी का कहना है कि इसराइली हुकाम ने गुज़िश्ता रात 2 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 2570 हो गई है।
غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانیت کا قتل عام جاری ہے۔ حماس نے اسرائیل سے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 جرگمالیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ ہم نے قطری ثالثیوں کو بتایا ہے کہ 5 روزہ جنگ بندی اور انسانی امداد کی اجازت کے بدلے 70 جرگمال خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر اسرائیل کو غزہ میں حماس کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کرتے ہوئے صہیونی فورسز کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد زمینی کارروائی میں ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 46 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پہلی بار اپنی ایک مغوی خاتون فوجی اہلکار کی شناخت بھی ظاہر کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی تقاضوں کے مطابق تکنیکی اور سائنسی مضامین میں وظائف متعارف کروانے اور بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے وظائف کی رقوم کے اجراء میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضوں اور معیشت کی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے دیے گئے سرکاری وظائف سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں چابی رپورٹ پیش کرنے اور آئی ٹی اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے تحقیق کے لیے فنڈنگ سے متعلق حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں تحقیق کا فروغ ضروری ہے۔ ملک میں تربیت یافتہ افرادی قوت بالخصوص نرسنگ کے شعبے میں تربیتی استعداد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہنرمند افرادی قوت ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ وزیر اعظم کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال، طلباء کے لیے وظائف، ملک کی جامعات اور تعلیمی شعبے میں حقوق دانش چوری کرنے کے سدباب کے لیے حکمت عملی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے اپنی وزارت سے متعلق امور کے بارے میں وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس ارشد حسین نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے خیبر پختونخوا میں انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ریٹائرڈ جسٹس ارشد حسین کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ آئینی کردار ادا کرتے ہوئے صوبے میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی بھرپور معاونت کریں۔ ملاقات میں اسمگلنگ کی روک تھام پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ میر جام کمال نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ میں مختلف سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت پر چلیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں وقار احمد سے۔ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت برقرار رکھیں گے۔ قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف کا کوئٹہ کے اہم دورے میں پارٹی عہدیداروں سے کہنا تھا کہ گوادر سے کوئٹہ خوزدار رتو ڈیرو تک سڑکوں کا جال ہم نے بچھایا، حقلہ ڈی آئی خان یوگ پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، یکمچ بیسما اور کوسر ہائی وے منصوبے بھی شروع کیے، تعلیم اور ڈیمز کے میگا پروجیکٹس کا آغاز بھی پی ایم ایل این نے اپنے دور حکومت میں کیا۔ گوادر سے کوئٹہ جو پہلے شاید 1.5 دن میں مکمل ہوتا تھا، آج گوادر میں ناشتہ کریں، لنچ آپ کوئٹہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا شوق تھا، محبت تھی اپنے عوام سے، جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ پارٹی پریزیڈنٹ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا 16 ماہ کی حکومت میں سب سے زیادہ دورے بلوچستان کے کیے، معاشی مشکلات اور تباہ کن سیلاب کا مقابلہ کیا، بلوچستان بھر میں دانش اسکول کا جال بچھائیں گے۔ نواز شریف نے ہر سیاسی جماعت کا مینڈیٹ ہمیشہ تسلیم کیا ہے۔ محمد نواز شریف کا کوئٹہ دورہ بلوچستان کی سیاست میں بڑا بریک تھرو ہے۔ پارلیمانی جماعتوں سے ہونے والی ملاقاتیں آئندہ الیکشن ایک پلیٹ فارم سے لڑنے کا اندیا بھی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے پی ایم ایل این میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سردار ایاز صادق کے کوئٹہ دورے اور محمد شہباز شریف سے لاہور میں نواب زادہ لشکری رئیسانی کی ملاقاتیں اہم تبدیلی کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔ قائد مسلم لیگ کے کوئٹہ دورے میں بی اے پی ڈیلیگیشن، خالد مکسی نیشنل پارٹی ڈیلیگیشن، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، پی کے میپ نواب ایاز جوگیزئی، جبکہ جے یو آئی کا وفد مولوی غلام سرور کی قیادت میں ملنے کے لیے پہنچا۔ پریزیڈنٹ مسلم لیگ شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز، سردار ایاز صادق اور پارٹی کی مرکزی قیادت کے کوئٹہ دورے میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی
भूटानी, स्पीकर बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, सरदार साले भूटानी, मीर कबीर अहमद मोहम्मद शही, सेनेटर मंजूर काकड़ और डॉक्टर हामिद अचकजई भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। वतन वापसी के बाद कायद मुस्लिम लीग का बलूचिस्तान से कैंपेन का आगाज सूबे की सियासत में बड़ी तब्दीली है। पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, सबको साथ लेकर चलने और मिलकर आगे बढ़ने का अज़म लेकर कोयटा आए हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड जज खालिद रांझा ने साथियों समेत मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी में शमूलियत पर उनका खैर मकदम करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा जमात है जो मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि माजी में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बने, हमें इनकी कोई परवाह नहीं। कुछ लोग इख्तियार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यकीन जाहिर किया है कि अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PDM हुकूमत का साथ देना वक्त की ज़रूरत था, सियासी मफादात सामने रखते हुए तो फैसला और होता। मजीद क्या तफसीलात है बता रहे हैं शिराज अली। थरपारकर के इलाके मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने दावे नहीं सिर्फ काम किया है। अगर किसी को हमारी कारकर्दगी देखनी है तो थरपारकर समेत सिंध का दौरा करे। हमने ये साबित कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर भी कर सकती है, थर में साबित कर दिया है। थरकोल मंसूबा और सिंध हुकूमत के दूसरे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, उनकी वजह से सिंध को पूरा एशिया में जो बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब तक मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, बल्कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन और नारे रोटी कपड़ा मकान पर अमल पेरा हैं। हमारा कोशिश ये होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में जमहूरियत के ज़रिए बेहतरी लेकर आए। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम घर घर रोज़गार के मौके नहीं पहुंचा सकते। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा और हम गुर्बत का और बेरोज़गारी का इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 15 माह में जो काम किए वो आवाम के सामने हैं। PDM की हुकूमत वक्त की ज़रूरत थी। हमने मुल्की मफाद को आगे रखकर मुआशी और सियासी फैसले किए। अब आवाम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम हमेशा इलेक्शंस में हिस्सा लेते रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को सिंध में वेलकम करते हैं। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि चारों सूबों को हुकूक बराबर मिलें। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मिट्टी, थरपारकर। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर भुट्टो मिल जिवन के घर गए और उन वफात पर अफसोस का इजहार किया। निसार खोड़ो, शाजिया मरी, सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। नाज़रीन, मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे कोयटा के मौके पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वफाकी वज़रा सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी, मीर आसिम कुर्द, मीर दोस्तैन डोमकी, साबिक वज़ीर खान मोहम्मद जमाली, फाइक जमाली, गफूर लहड़ी, मोहम्मद खान लहड़ी, सलीम खोसा, शोएब नौशिरवानी, अब्दुर्रहमान केतरान समेत कई रहनुमा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम किया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला मुल्क और सूबे के मफाद में किया। सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मौका दिया तो आइंदा भी सूबे की तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे।
कोयटा में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा कि खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हमने सूबे के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने मसाइल के हल के लिए साथ मिलकर चलने की बात की। डॉक्टर मालिक बलोच ने कहा कि नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि अहम उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में मोहम्मद नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात ऐसे नहीं कि दोबारा बैठकर मुज़ाकरात न हो सकें। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को सियासत का हक है। हमने मुल्क को बहरानों से निकाल कर माशी तरक्की की राह पर गामजन किया। अता तारड़ ने कहा कि हम तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और मसाइल हल करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी हैं। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का अमल 1 नवंबर से जारी है। आज हाफसाबाद, गुजरावाला, कसूर, डेरा गाजी खान, पेशावर और टांग की हल्का बंदियों पर दायर एतराज़ात की समाअत हुई। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिन पर समाअत का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा अपने असासों की तफसील जमा करा चुके हैं और कानून के मुताबिक वसूलशुदा गोशवारों की अशात की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन हो गया है। तर्जुमान ने कहा कि मीडिया पर इन गोशवारों की नकूल देने से मौजरत से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। सरकारी गज़ट में अशात शुदा गोशवारों की नकूल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त और मुतल्लिका फीस की अदायगी के बाद हासिल की जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत से रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तमन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील पर जेल ट्रायल से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में तलब कर लिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवा ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दी। ये गैर मामूली ट्रायल नहीं, सिर्फ जेल ट्रायल है। मजीद समाअत 16 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की एहतसाब अदालत में जमानत की दरखास्तें बहाल करने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी होने के बाद ये दरखास्त गैर मौसर हो गई है। उधर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडाला जेल रावलपिंडी में हुई। जज मोहम्मद बशीर ने मुल्जिम की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त को इल्तिवा में रखते हुए नैब को जेल में तफ्तीश की हिदायत की। आइंदा समाअत 17 नवंबर को होगी। सवाबी की मकामी अदालत ने साबिक स्पीकर असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। उन पर कजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन करने का इल्ज़ाम है। असद कैसर को सवाबी में जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने बदउनवानी के मुकदमे में मोनिस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज नसीम अहमद वरिक ने नैब की दरखास्त पर मोनिस के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्जिम को इंक्वायरी के लिए नैब के सामने पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अब मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। अदालत ने नैब को हिदायत की कि मोनिस इलाही को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। नैब मोनिस इलाही के खिलाफ गुजरात में जारी तरक्याती कामों के ठेकों में रिश्वत वसूल करने की तहकीकात कर रहा है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि उज़्बेकिस्तान के साथ बैंकिंग चैनल्स खोलने समेत लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। वो इस्लामाबाद में उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर जमशेद काजेव के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक रवाबित हैं। उज़्बेकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करने पर बातचीत की गई है, जिसके मुस्बत नतायज जल्द बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एग्जिम बैंक को फाल कर दिया गया है। उज़्बेकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दत तिजारत का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। ये एक बहुत बड़ा इस खित्ते का $550 बिलियन का जो है वो एक पोटेंशियल है जो पाकिस्तान को हर सूरत में जो है यूज़ करना चाहिए। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को डिजिटलाइज करना बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तजारत के फ़रोग़ के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान वर्किंग ग्रुप का इजलास हर माह होगा। The trade is a top priority for us. We decided
to work with the payment settlements and to work on the logistics. We identified the problems and we identified the way how to solve it. निगरान वजीर तजारत का कहना था कि पाकिस्तान को वस्ती एशियाई ममालिक से सस्ती एनर्जी हासिल करनी चाहिए। हमारा मकसद दोनों मुल्कों के कारोबारी बरादरी के दरमियान रवाबत को बढ़ाना है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर तवानाई ने पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान में तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए एक्शन प्लान की ज़रूरत पर जोर दिया है। किर्गिज़स्तान के शहर बिश्केक में चौथे बैनुल-अक़वामी कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ट्रांसिट, ट्रेड, ज़राई शोबे और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए किर्गिज़ हुकूमत की कोशिशों को सराहा। उन्होंने ई कॉमर्स, ज़राई शोबे में तहकीक, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग और मुश्तरका मनसूबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ने खुले समंदर तक रसाई के लिए कराची और गवादर की बंदरगाहों की सहूलत को बुरकरार लाने में किर्गिज़ हुकूमत की दिलचस्पी का इजहार किया। मीर अली में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद सुहेल और सिपाही अब्दुल्ला की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी और सिविल हुकाम और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों की कुर्बानियाँ मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म करने के कौमी अज़्म को तक़वियत देती हैं। दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान करने की कई अनसुनी दास्तानों में एक कहानी मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की है। इस बहादुर सपूत ने 18 अक्टूबर को शुमारी वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद हुंदा मैं वालदा मुल्क वास्ते कुर्बानी दी सी। ताकू कोई अरमान कहनी शहादत की थी पूरे पाकिस्तान मुल्क दी हिफाजत वास्ते दुश्मन नाल डट के मुकाबला किते सी। ताकू अपने शहीद ते फखर है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद वालदा हाँ मेरे को अपने बेटे दी शहादत ते फखरी है। उसने अपने मुल्क की खातिर दुश्मनां नाल बहादुरी लड़दे हुए अपनी जान कुर्बान की थी। जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। मैं शहीद अब्दुल हमीद की बेवा हूँ। वो बहुत मुहज़्ज़ब इंसान थे और बहुत बाइखलाक और बाकिरदार इंसान थे, बाअदब इंसान थे। मेरा वक्त उनके साथ बहुत कम गुजरा है लेकिन बहुत अच्छी यादें हैं। वो यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपने जान का नजराना पेश किया और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वालदैन नाल बहु अच्छे हैं, बहनी बिनावा नाल बहु प्यार करे ने। साडे घर जेड़े भी रिश्तेदार आने अदने शहीद दा घर है, सब बहु फखर सींद है। मेरे भाई को बचपन से ही आर्मी में जाने का बहुत शौक था। वो कहता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करूंगा और शहादत अल्लाह ताला मुझे नसीब करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन फिरोज अहमद की क़यादत में चल फाउंडेशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की फलाह के लिए तंजीम के इक़दाम के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मसनूई आज़ा की बदौलत खुसूसी अफराद की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद, बहाली और सहूलत के लिए फाउंडेशन के किरदार को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ट्यूनिस, रूस, तुर्की, बल्गारिया, बोस्निया, ताजिकिस्तान, जापान, जमहूरिया चेक, जनूबी कोरिया और ब्राज़ील के एजाज़ी काउंसिल जनरल्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत और सेहत के शोबे में दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं और एजाज़ी काउंसिल जनरल्स पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। वफ़द ने सदर ममलिकत को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ में एजाज़ी काउंसिल जनरल्स के किरदार के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड गनास से इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया।
अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने मुल्कों को वापसी जारी है। बज़रिया तोरखम और चमन बॉर्डर रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ 3239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 892 मर्द, 833 खवातीन और 1514 बच्चे शामिल थे। अब तक मजमूई तौर पर 2,23,637 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की बिना पर लोगों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से महरूम करके इंतकाम का निशाना बना रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुकूमत ने अपनी ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में पुलवामा के इलाके करालपुरा में 2 किनाल अराजी जबकि अवंतीपुरा में 2 मंजिला मकान को जब्त किया। आम शहरियों की ये जायदादें गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत जब्त की गई हैं। काबिज हुकूमत अब तक झूठे मुकदमात में हुर्रियत की आदत शबीर अहमद शाह समेत जमात इस्लामी के कारकुनान और आम शहरियों की ज़मीनें, मकानात, दुकानों और स्कूल समेत सैकड़ों जायदादें जब्त कर चुकी है। भारतीय हुकाम ने पहले ही श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स को जब्त कर लिया है। इसी तरह की एक और जालिमाना कार्रवाई में हिंदुत्व हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत के सैकड़ों कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। ये इकदाम हिंदुत्व हुकूमत की साजिश है जिसमें मकामी मुलाजमीन की जगह बाहर के लोगों को भर्ती किया जाता है ताकि इलाके में आबादी का तनासब तब्दील किया जा सके। हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, अब्दुल अहद, एडवोकेट अरशद इकबाल और दीगर ने श्रीनगर में अपने बयानात में शहरी इमलाक की जब्ती और मुलाजमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए इन इकदामात को कश्मीरियों के बुनियादी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेस के एहलकारों में खुदकुशी के रुझानात में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा जा रहा है। जनवरी 2007 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में 586 एहलकार अपनी जानें ले चुके हैं। माहिरीन सेहत ने भारतीय फौजियों की खुदकुशी की बड़ी वजह मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के एहसास से जुर्म को करार दिया है। निगरां वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद से डायरेक्टर डेवलपमेंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर जोमेयर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। निगरां वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को शदीद तरीन मौसमी खतरात का सामना है। उन्होंने सैलाब की सूरत हाल से निपटने समेत मुख्तलिफ शोबों में बरतानवी हाई कमीशन की हिमायत को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि अमराज से आगाही के लिए जामे पॉलिसी बनाना होगी। इस्लामाबाद में ज़ैबतिस के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि पाकिस्तान में इसके मरीजों की कसीर तादाद मौजूद है। ज़ैबतिस से बचने के लिए हमें अपना तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील करना होगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज पसमानदा इलाकों में ज़ैबतिस के हवाले से आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी की एक बड़ी वजह स्मॉग है जिससे सांस, गले और एलर्जी के अमराज में इजाफा देखने में आ रहा है। अमराज से बचाव और एहतियात के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम। मौसम सरमा के आगाज पर जब धुंध बनती है तो फिजा में पहले से मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और दीगर जहरीले मवाद इसमें शामिल होकर स्मोक बना देते हैं। कीमियाई तौर पर संतों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों या किसी भी चीज से जलने से निकलने वाला धुआं भी शामिल होकर इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बना देता है। स्मोक से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और शहरी आलूदा फिजा में सांस लेने से सांस, गले और पेट के अमराज और आंखों की जलन में मुब्तला होने लगते हैं। स्मोक होती है, ये केमिकल होता है, ये गैसेस का मिक्सचर है, आपके फेफड़ों पे असरअंदाज होता है। जिनको ये दमे की या फेफड़ों की एलर्जी की शिकायत है वो और मजीद बढ़ जाती है इन दिनों में। इसमें यह है कि मास्क लगा के बाहर निकलें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी स्मोक की सूरत हाल में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी अस्थमा का भी इशू है, चेस्ट इन्फेक्शन का इशू है या चेस्ट के ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोशिश करें अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। लाहौर में चंद दिन पहले होने वाली बारिश से स्मोक के हवाले से सूरत हाल में बेहतरी तो आई है, ताहम इससे मुकम्मल निजात के लिए मजीद बारिशों की जरूरत है। एहतियाती तदबीर इख्तियार करके हम स्मोक और फिजाई आलूदगी के नुकसान से बच सकते हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। माहौलियाती आलूदगी से बचाव और कूड़ा करकट मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए साहिवाल में सॉलिड वेस्ट प्लांट फाल हो गया है। मंसूबे की अफादियत के बारे में बता रही हैं हुमा सदफ। माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में जिंदगी को खतरे में डालने वाले संगीन मसाइल हैं। माहौलियाती आलूदगी की एक किस्म सॉलिड वेस्ट या आम जबान में कूड़ा करकट भी है। घरेलू कूड़े से लेकर अस्पताल और सनतों के फुजले तक ये जहरीली गैसों के अखराज और जेर जमीन पानी को आलूदा करने का सबब बनते हैं। मेरे घर पे कूड़ा जो पड़ा है ना बिल्कुल गल चुका है, तो उसमें ना वो पंप है उसमें पानी निकालते हैं ना
तो उसमें भी बहुत स्मेल आती है। कूड़ा है तो अपने घर में शॉपर पर बांध के अपने एक साइड में रख लो, सुबह को जमादार आएगा तो ले जाएगा। बदबू फैलती है, मसला क्यों नहीं, मच्छर आते हैं। अर्बन यूनिट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब ने साइंटिफिक बुनियादों पर कूड़ा करकट तल्फ करने के लिए साहिवाल में वेस्ट प्लांट लगाया है, जो शहर के कूड़े को तल्फ करने के साथ साथ अलहदा करने और इससे खाद बनाने का काम भी कर रहा है। सेग्रीगेशन प्लांट से दोबारा काबिल इस्तेमाल अशिया जैसे कागज, गत्ता, लोहा, शीशा, प्लास्टिक वगैरह को अलहदा और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अशिया को अलहदा किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये माहौलियाती दोस्त प्रोजेक्ट है, जिसमें से हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस तकरीबन कोई 1 लाख टन CO2 इक्विवेलेंट पर एनम जो है वो हम एक सेविंग कर ले हैं। तो ये एक जो प्रोजेक्ट जो हुकूमत पंजाब ने लगाया है, ये बहुत इसका पोटेंशियल मौजूद है कि इसको हम बड़े शहरों में लाहौर के अंदर, गुजरावाला के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर भी हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक खसूसी प्लांट से फलों सब्जियों के छिलके, खाने पीने की अशिया, ग्रीन बेल्ट और गलने सड़ने वाली अशिया को खाद में तब्दील किया जाता है। इस वक्त ये प्लांट 36 टन कूड़ा रोजाना प्रोसेस करके नामियाती खाद बना रहा है। ताहम हमें हर शहर में ऐसे प्लांट की जरूरत है। सही तरीके से तल्फ ना किया जाए तो ये कूड़ा करकट न सिर्फ गंदगी और बदबू बल्कि माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का भी बाइस बनता है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद में मौसम और आबो हवा के हवाले से दूसरी वर्कशॉप हुई। तफसीर बताएंगे अम्मा दीवान। वर्कशॉप में माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में दर्जा हरारत में 1.5% से जायद के इजाफे और दुनिया भर के 4 मुख्तलिफ खित्तों में इसके समाजी और इक्तिसादी असरात को तलाश करना है, जिसमें से एक पाकिस्तान का बालाई सिंध तास का खित्ता है। पाकिस्तान की एमिशन जो है लेस देन 1% है दुनिया के एमिशन में। हमने इस मैस को क्रिएट नहीं किया, लेकिन हम इसके बहुत बड़े विक्टिम हैं और इसका मकसद ही यही है कि दुनिया को बताया जाए और उन पर प्रेशर डाला जाए डेवलप्ड इकोनॉमीज, और यही कॉप में हम जाके अचीव करने की कोशिश करेंगे। वर्कशॉप का मकसद कोप 28 के लिए सिफारिशात और तजावीज़ तैयार करना है, जो रवां माह दुबई में हो रही है। माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के नुमाइंदों के अलावा तुलबा ने वर्कशॉप में शिरकत की। जो हमारे आने वाले वक्त में जो हमारी नस्लें हैं वो कितना महफूज हो सकती हैं, हम कितना इम्पेक्ट्स को डिज़ास्टर के अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल हमारे पास सैलाब आया, 33 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। अब उसमें अगर हम इस तरह की प्रोजेक्ट्स की पहले हमने एप्लीकेशन की होती है अपनी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, तो बहुत सारा नुकसान हम बचा सकते थे। शुरा ने इस तरह की सरगर्मियों के जरिए डेटा जनरेशन और इल्म व वसाइल के तबादले की सूरत में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का मुकाबला करने की हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकी ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की शरह अमवात पाकिस्तान में होना तशवीशनाक है। कराची में कॉलेज ऑफ नर्सिंग उस्मान अल्लाह वाला में यूनिसेफ के तहत स्किल लैब के क़याम और टेक्नीशियन कोर्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हर 14 में से एक पाकिस्तानी बच्चा अपनी 5वीं सालगिरह तक जिंदा नहीं रहता। बेशतर जानें मुनासिब और बर वक्त एहतियाती इलाज मुआलजे से बचाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की शरह में कमी भी एक चैलेंज है। तकरीब से यूनिसेफ की प्रेम बहादुर चांद, डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद और प्रोफेसर टीपू सुल्तान ने भी खिताब किया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने हेल्थ कार्ड के तहत पैनल लिस्ट में शामिल होने वाले निजी अस्पतालों का मयार चेक करने के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। महकमा सेहत के इजलास में वज़ीर आला ने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मौसर और हर जिले और तमाम अस्पतालों में भी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम दिए। मीर अली मर्दान डोमकी ने गुज़िश्ता साल दवाओं की खरीदारी में सुस्त रवि और दवाओं की कंपनीज को फौरी अदायगियाँ न होने का सख्त नोटिस देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। पंजाब हुकूमत ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए सूबे में 9 मॉडल ज़राई सेंटर्स के क़याम का फैसला किया है। लाहौर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि मनसूबे के तहत डिविजनल सतह पर मॉडल ज़राई सेंटर्स में काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक छत तले मैसर होंगी। फलों, सब्जियों और दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। डिवीजन के बाद अजला में भी मरहलावार प्रोग्राम के तहत मॉडल ज़राई सेंटर्स कायम किए जाएंगे।
पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की ताज बरादरी और ईवान सनत के अहदेदारों की जानिब से गवर्नर हाजी गुलाम अली की खिदमात के एतराफ़ में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में ताजरों, सनतकार और अक़लियती बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के शरका ने बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स और पेशावर शहर की तामीर और तरक्की के लिए शानदार खिदमात पर गवर्नर को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि मुल्की मईशत मुस्तहकम करने के लिए अपने वसाइल पर तवज्जो देना होगी। सनत और तिजारत की तरक्की के लिए तमाम तर मुश्किलात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। कारोबारी तबका रोजगार फराहम कर रहा है, इनके लिए आसानियां जरूर पैदा होनी चाहिए। ज़ियाबितस के आलमी दिन के मुनासबत से गवर्नर हाउस लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की क़यादत में एक वॉक का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। ज़ियाबतीस खून में ग्लूकोज की सतह का ज़्यादा होना है, जिसकी वजह से जिस्म में मुनासिब इंसुलिन का ना बनना है। माहिरीन इस मर्ज से बचाव के लिए मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हैं, जिसके लिए अवामी सतह पर आगाही ज़रूरी है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौका पर गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कहा कि ज़ियाबतीस पर काबू पाने के लिए अवामुन्नास में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 30% अफराद का इस मर्ज में मुब्तला होना तशवीशनाक है। मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि ज़ियाबतीस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में अवामी आगाही मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाया जाए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि ज़ियाबतीस काबिल इलाज मर्ज है और हम अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके बेहतर बनाकर इस मर्ज से काफी हद तक बच सकते हैं। ज़ियाबतीस से आगाही के लिए अलहमरा से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स समेत मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नर हाउस की तरफ से आम अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौका पर शालामार अस्पताल में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जहां मरीजों को मुफ्त ब्लड टेस्ट और चेकअप की सहूलत के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर शुगर से मुतल्लिक आगाही वॉक की गई, जिसमें डॉक्टर्स और स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। लाहौर में सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल के ज़ेर एहतमाम शुगर के मर्ज से आगाही के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां शहरियों के ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के मुफ्त टेस्ट किए गए और ज़ियाबतीस के मरीजों को काउंसलिंग भी की गई। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं अनवरुल्लाह खान। पेशावर में ज़ियाबतीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद लोगों में ज़ियाबतीस और मोटापे से मुतल्लिक आगाही पैदा करना और पॉलिसी साजों की इस बीमारी की तरफ तवज्जो मबजूल कराना था। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में इसकी प्रिवेंशन के लिए कुछ करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन सिलेबस में डालें और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको सस्टेन करें। तकरीब में ज़ियाबतीस और मोटापे के हवाले से 3 पैनल डिस्कशंस हुए, जिनमें शुरका ने इन बीमारियों पर काबू पाने के हवाले से तजवीज़ पेश किए। इस मौके पर डेनमार्क के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस और मोटापे जैसी बीमारियां तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। We are very focused on the work in Pakistan to improve a healthier lifestyle, to fight diabetes and fight obesity. ज़ियाबतीस से बचाव के प्रोग्राम के तहत स्कूलों के निसाब में सेहत से मुतल्लिक असबाक शामिल किए जाएंगे, जबकि सूबाई सतह पर ज़ियाबतीस से बचाव के लिए आगाही मुहिमात जारी रखी जाएंगी। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने कहा है कि मुल्की मफाद में शुरू किए जाने वाले बड़े मंसूबे किसी सूरत मुतासर नहीं होने चाहिए। गिलगित में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दासू डैम के लिए 513 एकड़ ज़मीन गिलगित बल्तिस्तान से शामिल होगी, जिसके लिए दयामिर में दासू डैम डिस्ट्रिक्ट डेस्क को फाल बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि दासू डैम के मुतासरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके जायज़ मुतालबात पूरा करना वापडा की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध का इम्कान है। नाज़रीन, अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूँ रही। लह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, स्कर्दू में -3, कालाम -2, चित्राल 2, जबकि दीर में भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में 9, लाहौर 13, कराची 19, पेशावर में 11, जबकि कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।